Bible Ministry registered in Pakistan. Yes. This one. Yeah, yes. Do you like it? Yeah, very well. Okay. We are distributes the books. Okay. Okay, okay. You, हाथ मिलाओ यार. Are you serious? Yes. Yeah. And who's going to capture from the other? Are you serious, students? Okay. Yes. So, you can start. So everybody has the book. Okay. अपनी किताबों से करते हो, किताबों से करो. Yeah, this one is books. Yes, yes, sir. Okay. Meditate the word. Yeah, meditate the word. Yes, Number yes. also. Yeah. Very well. Very well. Glory God. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Yeah, you can pray and start. Okay, dear Heavenly Father, give us a precious Bible study today. आसमानी बाप, मैं तेरी हजूरी के लिए, तेरी मामूली के लिए आज दोपहर तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ. Right now, the world is struggling with COVID-19. आमीन. और खुदावन पूरी दुनिया कोविड-19 के प्रॉब्लम में, लेकिन तूने हमें तंदुरुस्ती और सलामती बख्शी. तेरा शुक्र हो. Typical the times are passing in the meantime. Thank you for blessing Pakistan Bible College. आमीन. पूरी दुनिया के लिए कोरोना वायरस का टाइम बहुत मुश्किल है, लेकिन हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के बाइबल कॉलेज के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बच्चे कलाम सीखने के लिए आए हैं. Thank you for protecting and guiding Pakistan Bible College, Pastor Ashik Sandhu and the students. बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने पाकिस्तान बाइबल कॉलेज के बच्चों को तंदुरुस्ती सलामती दी हुई है और पास्टर आशिक को भी तंदुरुस्ती और सलामती दी हुई है. Give the Pastor Ashik Sandhu of Bible College the power and the wisdom of Christ. आमीन. पास्टर आशिक सिंधु बड़ी हिकमत और दनाई के साथ यीशु मसीह की बातें बाइबल कॉलेज के जरिए बच्चों को सिखा रहे हैं. Thank you for study Bible with me today. I am now the Son of God. God is now my Father. आमीन. आए बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें मौका दिया और हम खुदावंद तेरे बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि जितनों ने से कबूल किया खुदा के फर्जंद ठहराए. Please clothe Pastor Ashik Sandhu and the students with the power and the power of Christ. आमीन. और हम यीशु के नाम से इन बच्चों को बढ़ने की दुआ देते हैं, पास्टर आशिक सिंधु को बढ़ने की दुआ देते हैं. God gave Pakistan Bible College all students wisdom and the power give the word of God. आमीन. हम पाकिस्तान में बाइबल सीखने वाले तमाम स्टूडेंट को हिकमत और दनाई और रूह कुदस की कुदरत से ये खुदा के कलाम को समझें और सीखें. Please help me to evangelize the gospel of Christ to many Pakistan people through Pastor Ashik Sandhu and the student. आमीन. आए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि हम तेरे कलाम की खुशखबरी बहुत से लोगों तक पहुँचाएं और तेरे कलाम की तालीम को समझें, सीखें और लोग खुदावंद तेरी तरफ राग़िब हों.
Please bless everyone at the Pastor Asik Sandu Bible College. Please be with Pastor Asik Sandu student in the power of God. मैं बाइबल कॉलेज के एक स्टूडेंट के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगता हूँ। Dear Heavenly Father, anoint Pastor Asik Sandu with the Spirit of Christ. मैं पास्टर आशिक सिंधु के रूह का मसा मांगता हूँ, रूह कुदस की कुदरत को मांगता हूँ। Pakistan Bible student, please be with God. God bless all students and provide that He needs us. आमीन। और पाकिस्तान के बाइबल स्टूडेंट्स को जो भी चीजें रिक्वायर्ड है खुदावंद तुम मुहैया कर। I bless and pray with the Spirit of Christ to all those I meet through Asik Sandu. I pray in the name of Lord Jesus Christ. और ये सारी दुआ और बरकत मैं बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट और पास्टर आशिक सिंधु के लिए मांगता हूँ, यीशु मसीह के नाम से तुम सबको बरकत दे। Amen. Glory to God. May the blessing of the Lord Jesus Christ be with you all. Sorry? May the blessings of the Lord Jesus Christ be with you all. आमीन। और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा का फजल आप सब पर हो। आमीन। Christ blessing bless you all together. आमीन। और मसीह के नाम से तमाम को बरकत मिले। I bless you all with God's blessing and guidance by doing a good study of the Bible today. और मैं ये बरकत की दुआ करता हूँ कि आज जो कुछ कलाम हम सीखने वाले हैं, ये हमारे लिए बाइस से बरकत हो और हमारी जिंदगी में तब्दीली का सबब ठहरे। The Bible was not written for blessing of the world. बाइबल सिर्फ अल्फाज में तहरीर नहीं की गई। The Bible does not record the things that are blessed and prosperous in the world. और बाइबल मुकद्दस के जरिया से ही आप पूरी दुनिया में कामयाब हो सकते हैं। The Bible is written in order to believe in Jesus Christ and be saved. आमीन। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हम सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से कर सकते हैं। Therefore, we must know the Bible right away and study word. आमीन। लेकिन अगर आप ये चीज सीखना चाहते हैं तो हमें बाइबल मुकद्दस की मुकम्मल तौर पर मुतालिया करना है, जो दुरुस्त तरीके से बाइबल को सीखना है। This is the purpose of writing the Bible that God has given us. और यही खुदा का मकसद है, ये बाइबल इसलिए दी गई ताकि हम खुदा के मकसद को जाने और समझें। Okay, we are going to text the book. Text the book. अभी हम page 3. पेज नंबर Yes, page 3. Meditate the word. फर्स्ट पेज। Yes, page 3. Number No, 1. please. Meditate, examine the word. Okay, this one title like that. No, मैं- page yeah, 3. Page 3. 23. Yeah, page 3. Do you? Okay, just wait. कलाम पढ़। Okay. Yeah, understand. बेटा आपका ये पेज है, इसमें पेज लगाएं, कलाम पर गौर खास। और ये वाला भैया, ये वाला आगे। Okay, this one is okay. Okay, please read all together. क्या हम इकट्ठे पढ़ सकते हैं? हमें बैरिया के लोगों की मानद कलाम का मुआयना करना चाहिए।
हमें क्यों कलाम पर गौर करना चाहिए? क्योंकि कलाम खुदा है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, खुदा को जानने के लिए हमें बाइबल को जानना है और इसका मुतालिया करना चाहिए। बाइबल मुकद्दस सिर्फ एक किताब नहीं, ये पाक कलाम है और जिंदा है और मजीद बरहा हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से है। चनाचा हमें जरूर याद रखना चाहिए कि खुदा का कलाम जिंदा है और जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तभी हम खुदा का कलाम हम में जिंदा रहेगा। आमीन। आमीन। Therefore, we must know the Bible right away and study the word. आमीन। और बाइबल मुकद्दस को दुरुस्त तरीके से पढ़ना चाहिए। This is the purpose of writing the Bible that God has given us. खुदा ने यही मकसद बाइबल में रखा है कि हम बाइबल को दुरुस्त तरीके से पढ़ें और बाइबल को दुरुस्त सही जाने बाइबल में क्या लिखा है। Because God is the word and God blesses us with his word and communicates with us. आमीन। क्योंकि आपको पता है कि खुदा अल्फाज है, खुदा आपको बरकत देता है और खुदा इस कलाम के वसीला से आपसे बात करता है। आमीन। That's why we must study the Bible well. You need to know the Bible right away. और आपको बाइबल मुकद्दस की दुरुस्त तरीके से मुतालिया करना चाहिए। Please read the textbook John 1:1. यूहन्ना की इंजील 1:1 में देखिएगा जी। Yeah, all together, please read the John 1:1 textbook. जी या आपकी नहीं यार, आपकी बुक पे लिखा हुआ है, आपकी बुक पे लिखा है यूहन्ना की इंजील। Yeah, textbook John 1:1, please read. जी पढ़े, मिलकर पढ़ते हैं। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। Amen. आमीन। In the beginning was the world was with God, world was God. आमीन। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। How can he meet God? हम खुदा को कैसे मिल सकते हैं? Can you meet God money? क्या हम पैसों के जरिए खुदा से मिल सकते हैं? No. नो। If you want to meet God, you will study Bible first. ओके, अगर आपने खुदा से मिलना है तो आपको बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करना पड़ेगा। आमीन। We are going to please read the textbook Hebrew 4:12. अब्रानियों 4:12 देखिएगा कि क्या लिखा हुआ है। Yeah, all together. सारे मिलकर पढ़िएगा। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मोसर है, हर एक दो धारी तलवार से तेज है और जान और रूह और बंद और बूटे को जुदा करके गुजर जाता है, दिलों के ख्यालों और इरादों को जांचता है। चले कहते हैं कि ये वक्ती रियाजी को सीखने का है। रियाजी को सीखने के लिए हमें कौन सी किताब का मुतालिया करना चाहिए? अगर मेरे पास एक अंग्रेजी की किताब है, क्या मैं रियाजी को ठीक तरह से सीख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरे पास जरूरी नहीं कि रियाजी की किताब भी होनी चाहिए, तभी रियाजी को सीख सकते हैं। हमारे खुदा को जानने के लिए हमें किस चीज पर गौर करना चाहिए? ये आदमियों का कलाम या खुदा का कलाम? यकीनन अपने खुदा को जानने के लिए खुदा के कलाम को जानना और इस पर ईमान रखना जरूरी है। आमीन। Hallelujah. Amen. What is the purpose of the Bible? बाइबल मुकद्दस का क्या मकसद है? That you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. और बाइबल मुकद्दस का मतलब है कि आप यीशु मसीह पर यकीन रखें कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। John 20:31 through the Bible tell us to believe in Jesus Christ and receive life and be saved. और यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि यीशु मसीह पर यकीन रखोगे तो आप अपनी जिंदगी पाओगे। जोरदार ताली।
The Bible is the book of life by believing in Jesus as the Christ and being saved. आमीन। और बाइबल मुकद्दस यीशु मसीह के बारे में बताती है कि आप इस पर यकीन रखें और आप अपनी जिंदगी को हासिल करें। Why should we study the Bible? हमें क्यों बाइबल स्टडी करनी चाहिए? If we want to meet God, if we study the Bible, through we will meet the Christ. अगर हम बाइबल मुकद्दस की स्टडी करेंगे, हम खुदा से मिलेंगे, हम यीशु मसीह के बारे में जानेंगे। We are going to text the book, Acts 17:11. जी, अमाल की किताब 17:11 में लिखा है, बैरिया के लोग थस्सलुनीकिया के यहूदियों से नेक थे, क्योंकि उन्होंने बड़े शौक से कलाम को कबूल किया और रोज बरोज किताब मुकद्दस में तहकीक करते थे कि आया पालूस की बातें इसी तरह हैं। आमीन। Amen. Why should we meditate scriptures? अब आपने यहाँ पर देखा कि जो बहरिया के लोग थे वो रोज बरोज क्यों तहकीक करते थे? If we belong to Christ, we are descendants of Abraham. और अगर आपका ताल्लुक मसीह से है तो हम इब्राहिम की नस्ल से। आमीन। All the apostles preached taught that we must believe in Jesus as the Christ. अगर हम यीशु मसीह पर यकीन रखेंगे तो अपनी जिंदगी को पाएंगे। We are going to Bible, Acts 5:42. Please read Bible. ओके, अमाल की किताब 5 बाब 42 आयत को देखिएगा जी। Yeah, look at the Bible. Open to Bible. Okay, the people is open. Open to Bible. अमाल की किताब 5 बाब 42 आयत। असलम को पूरी की जी पढ़े। Yeah, Acts 5:42. ठीक है, आमीन करें। कैरी ऑन। और फिर हैकल में और घरों में और रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से यीशु ही मसीह है, वासना आए। आमीन। आमीन। Amen. All the scriptures, all the apostles preached and taught that you must believe in Jesus as the Christ. आमीन। और आपने देखा कि वो हर रोज तालीम देते थे कि यीशु ही मसीह है और तमाम जो न्यू एग्जामा में अंबिया है उन्होंने यही तालीम दी है यीशु के शुरू की बात में। We are going to Bible, Acts 9:22. जी, अमाल की किताब 9 बाब 22 आयत को देखिएगा। Bible, Acts 9:22. लेकिन साउल को और भी कुव्वत हासिल होती गई और वो इस बात को साबित करके कि मसीह ही है, मसीह यही है, मक्ष के रहने वाले यहूदियों को हैरत दिलाता रहा। आमीन। आमीन। We need to study the Bible properly because the Word is God. और याद रखें, आज आपको प्रॉपरली रेगुलरली बाइबल को पढ़ना है क्योंकि ये खुदा के उपास है। We must meet God through the words of the Bible. आमीन। क्योंकि इसी के जरिया से ही हम खुदा से मिल सकते हैं। Acts 17:11 Bible said we have to examine the scriptures as the variants. और अगर अमाल की किताब सॉरी अगेन रेफरेंस We have to examine the scriptures as the variants. आमीन। और अमाल की किताब के मुताबिक जैसे दुनिया पे आप इम्तिहान देते हैं तो आपको स्क्रिप्चर बताएगा कि आप दुनिया में रहते हुए एक इम्तिहान से गुजर रहे हैं। And the early church members, why should we meditate scriptures?
और बहुत से लोग जो चर्च मेंबर है वो कहते हैं कि मैं क्यों बाइबल को पढ़ूं या मैं क्यों बाइबल को गौर करूं, Why should we study Bible? और मुझे तो बाइबल स्टडी नहीं करनी क्योंकि मैं तो चर्च मेंबर हूं। Because word is God. लेकिन याद रखें कि खुदा के अल्फाज ही खुदा है। आमीन। And we are going to text the book, next page. ओके, नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे अपनी इस पेज से अगले पेज। Yeah. Next page here. Yeah. Please Understand. read here all together. या मैथ्यू 23। Yes. Please read all together here. आमीन। ओके, Matthew 23 before. या ओके। ना तुम उस्ताद कहलाओ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है, यानी मसीह यस्सु, यानी मसीह। चनाचा बहुत अहम है कि एक उस्ताद से मुलाकात करे क्योंकि उस्ताद आपको आसमान या आग से जलते हुए गड़े में ले जा सकता है। आग से जलते हुए गड़े से कोई भी हम में नहीं बच सकता, क्यों कोई भी हमें शैतान से महफूज नहीं कर सकता, सिर्फ हमारा खुदा हमें महफूज कर सकता हो, बचा सकता। खुदा के कलाम के बगैर हम महफूज नहीं हो सकते क्योंकि खुदा का कलाम उस पर यकीन, ये लफ्ज़ी गलती है, उस खुदा पर, दूसरे खुदा पर यकीन जो आदमियों के कलाम से बना हुआ, मगर उस खुदा पर ईमान और यकीन रखें जो इब्तिदा से मौजूद है। ये हमारा खुदा है जो हमसे प्यार करता अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में लोगों के लिए भेजता है जो यीशु मसीह से ताल्लुक रखते हैं। Amen. आमीन। Christ is the image of God. Christ is the power of God. और आपको पता है कि जो मसीह है वो खुदा की शुद्धि पर है और मसीह जो है वो खुदा की कुदरत है। In order to know God, we have to know and read the Bible. और अगर आप खुदा के हुक्मों को जानना चाहते हैं तो आपको बाइबल मुकद्दस को पढ़ना पड़ेगा। जोर दाता है। The Bible is not just a book. This is the Holy Scriptures and it is a living. बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि किताबे मुकद्दस है और ये जिंदा है, बोलती है और जवाब होती है। जोरदार Christ is the power of God and the wisdom of God. आमीन। और मसीह खुदा की कुदरत है और मसीह खुदा की हिकमत है। How can you meet God? हम कैसे खुदा से मिल सकते हैं? All the scriptures are given by inspirations of God. आमीन। और पूरी बाइबल हमें यीशु मसीह के मुतालिक बताती है। When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with him in glory. आमीन। और तमाम जो स्क्रिप्चर्स है वो हम बताते हैं कि हम कैसे अपने बदलों से उसके नाम को जला दें। We must remember that God is the Word when we read the Bible, so that the Word of God will be living in us. आमीन। याद रखें कि आपको पता है कि कलाम खुदा है और जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। आमीन। Remember how can you meet God? हम कैसे खुदा मुलाकात कर सकते हैं? John 1:1, in the beginning was the world was with God, world was God. यूहन्ना की इंजील 1:1 पर लिखा है खुदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। In order to know our God, what should we meditate in? Is it man's world or God's world? आमीन। और ये बात हमें इस चीज पर जोर देती है
कि हम बाइबल मुकद्दस पर गौर करें और गौर करें, ताकि हम इसके वसीला से महसूस करें। हमें Of course, we have to believe and know the word of God in order to know our God. हमें, और जब हम इस पर यकीन करेंगे कि जो कुछ इसमें लिखा है हमारी भलाई के लिए, तो यकीनन हम बरकत पाएंगे। Faith comes hearing the message. और यही पैगाम मेरे और आपके लिए है। Message is the heard through the word of our Christ. और खुदा का पैगाम किसी के जरिया नहीं, बल्कि कलाम के जरिया हम तक पहुंचता है। Thus, we should not believe anyone easily famous pastors are men as well. आमीन। हमें बेशक दूसरे किसी स्क्रिप्चर्स पर या किसी ऐसा काबिल जो बाइबल से बाहर, उस पर यकीन ना करें, लेकिन जो बाइबल की तालीम देता है उस पर यकीन करें। Pastors who have big churches are also men. और पास्टर्स जो है उनके पास बहुत से चर्च मेंबर हैं, बहुत से लोग हैं। And please read the textbook Matthew 20:10. जी, ये आप उस पे आ गए। पहले वो मैंने किसी और का था। ओके। Yes, और तुम उस्ताद और ना तुम उस्ताद कहलाओ, क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है, यानी मसीह। चनाचा बहुत अहम है कि एक उस्ताद से मुलाकात करें, क्योंकि उस्ताद आपको आसमान या आग से जलते हुए घड़े में से ले जा सकता है। आग से जलते हुए घड़े से कोई भी हमें बचा नहीं सकता, कोई भी हमें शैतान से महफूज नहीं करता। सिर्फ हमारा खुदा हमें महफूज कर सकता है, हमें बचा सकता है। खुदा के कलाम के बगैर हम महफूज नहीं हो सकते, क्योंकि कलाम खुदा है। हालेलुया, आमीन। The Bible does not say Jesus, Jesus, Jesus to believe in Jesus as the Christ. बाइबल खाली यीशु यीशु नहीं बताती, बल्कि ये बताती है कि हमें यीशु मसीह पर यकीन रखना है। Amen. आमीन। जोर से बोलेगा। Why should we not believe in Jesus, Jesus, and believe in Jesus Christ? कि इस बात पे यकीन ना करें कि यीशु यीशु, बल्कि हमें यकीन करना है यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। आमीन। Believing in Jesus as the Christ means that I have been saved. आमीन। जब हम यीशु मसीह पर यकीन रखेंगे और ये यकीन रखें कि हम बच जाएंगे। आमीन। Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आमीन। God wants everyone, every sinners to be saved. आमीन। और जो कोई भी गुनाहगार भी यीशु मसीह पर यकीन रखेगा वो बच जाएगा। आमीन। And we are going to text the book 2 Corinthians 3:3. जी, दूसरे ग्रंथियों 3:3 पे देखिएगा, आपकी किताब में लिखा है, Yeah, all जाहिर है together. कि तुम मसीह का वो खत हो जो हम आदमियों के तौर, हमने खादमों के तौर पर लिखा, स्याही से नहीं बल्कि जिंदा खुदा के रूह से, पत्थर की तख्तियों पर नहीं बल्कि गोश्त की यानी दिल की तख्तियों पर। आमीन। Amen. आमीन। Many people go to church but believe that Jesus is the Christ, Christ is Jesus. They do not know meaning. बहुत से लोग चर्च जाते हैं और वो इस बात पर यकीन करते हैं यीशु मसीह है, मसीह यीशु है, और इनके बारे में जानते भी नहीं है कि क्या है ये, या यीशु क्या है या मसीह क्या है। These people have not yet been saved from the sin. और वो अपने गुनाह से बच नहीं सकते या गुनाह से उनको कोई बचा नहीं सकता। What is the evidence of salvation from the sins of the sin? और गुनाह से बचने के लिए हमारे पास क्या सबूत है? That is the fact Jesus is the Christ.
और गुनाह से बचने के लिए हमारे पास एक ही सबूत है और उसका नाम यीशु मसीह है, क्योंकि बड़े के लहू से ही हमारे गुनाह धुलते हैं। आमेन। हो जाता है। Christ is the God. Christ is the image of God. याद रखें कि यीशु मसीह खुदा की शबीह पर है। Christ is the power of God. Christ is the healing of God. और यीशु मसीह ही खुदा की कुदरत है, यीशु मसीह ही शिफा का मनबा है। Christ is the God. We should praise Christ. We must worship. आमीन। तो हमें चाहिए कि यीशु मसीह की तारीफ और सताइश करते रहें। Christ makes us glorify. Christ is the power that saves us from sin. और यीशु मसीह का कुदरत वाला नाम ही हमको गुनाहों से बचाता है। Yet to all who did receive him, to those who believe in his name, he gave the right to become children of God. याद रखें, बाइबल मुकद्दस बताती है कि अगर हम यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो हम उसके फर्जंद बनेंगे। यूना की जिले के बारे में क्या है? जितनों ने से कबूल किया खुदा के फर्जंद बनने का। आमीन। Everyone believed that Jesus is the Christ, born of God, and everyone who loves the Father. याद रखें, जो बाइबल मुकद्दस की स्टडी करता है वो खुदा से प्यार करता है। आमीन। Amen. आमीन। If we want to go to heaven, we have to meet the Christ. Don't forget. और इस बात को याद रखना है, जब आप खुदा की बादशाहत में जाएंगे आप यीशु से सुनेंगे। Amen. आमीन। This is a study Bible today. सॉरी, This is a Bible today. Study Bible today. आज खुदा का कलाम इतना ही था मेरे पास आपको सुनाने के लिए। Yeah, we can study Bible next time here. ओके, नेक्स्ट टाइम आपको बाइबल की ये स्टडी बताएंगे कि ये कैसे बोलती है। आमीन। Amen. Yeah. People is telling about the session. People is very excited and receive the blessings. Okay. जरा क्लैप करें। Praise God, glory God. आमीन। आमीन। कोई एक चलता है। Yeah, he wants to say something. Pastor, please review reading this book. Amen. We also reading. Don't worry about it. Yes. Okay. Meditate word. Okay. The one student said today received too many blessings. The past time message was too wonderful, but today is so blessed. Thank The one you. student is the best according Yes. to scriptures. Okay. Okay. The pastor Aslam says today when your world meditates, Yes. so that's a more powerful for your life. And I will be teach to the other church members meditate the word of God. Amen. This is a testimony. Amen. Thank Glory you, God. glory God. Amen. Okay, the one man says he's a pastor Sadiq. He says this is a powerful, so we can meet the God by the Bible study. Amen. Amen. By the word of God. Amen. So next. So Pastor Vikas, he says, I'm very happy. So today we have received received a blessing when I will be go to the kingdom of God and I can meet Jesus. Glory God. Yes. He's a- Amen. Amen.
Amen. Okay, thank you for study Bible today. God bless in Christ. 가리소고 파키스탄 바이블 칼리지 화이팅! 아식사 산도 프레이스 갓! 아멘! 바이!